हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका को माई कोडिंग लाइफ में वंस अगेन। और आज हम पढ़ने वाले हैं लूप्स इन पाइथन के बारे में। 12, 13, 14, 15. Finished another set. My trainer has told me to repeat this 15 times with each arm. He loves to torture me. Computers are lucky that way. They can easily perform repetitive tasks using loops. In this topic, I will teach you how to use the for and while loops. 1, 2, 3. Loop is a popular phrase in programming jargon. As you learned, the program flow may skip some statements with the use of statements such as if and elif. If the program flow is redirected towards any of earlier statements in the program, it is known as a loop. In the diagram that you see here, you would have expected statement 5 to be executed after statement 4. However, the control of the program is redirected back to a previous statement. So statements 1 to 4 will be repeated in a loop. Imagine if my trainer hadn't told me to stop lifting these weights, I would be stuck doing this infinitely till I collapsed from exhaustion. In the same way, unless we specify some conditions for the loop to stop, it will get stuck in an infinite loop. We do this in Python using two keywords, while and for. These keywords constitute a conditional loop which repeatedly executes a block of statements until a Boolean expression is true or not true. Pi, stop wasting time. Are you doing squats like I told you? Tell me, how many squats you did last week? Can we talk about this later? I'm busy. No, bro, now. So, how many squats on Monday, 16, Tuesday, 18, and Sunday? 0. You just did an average of 12.5 squats a day? Bro, not cool. I don't need him to torture me. A simple Python program with a while loop could calculate the average squats for me without judging me. Let me show you how to write this program. For the sake of understanding, let's divide the program into three sections. In the first section, let's define three variables: day, squats, and total. We will use day to count the number of days, squats to get the input on the number of squats done per day, and total to calculate the sum of the number of squats done in a week. We will also add a simple print statement to show some instructions. In the second section, we write the while loop and the loop body. We use the condition day is less than or equal to 6 to check that we don't exceed 1 week. Since we are starting with 0, we use 6 in the condition to include 7 days. In the body of the while loop, we first add 1 to the day variable to increment it for the next day. We then get the number of squats done on each day using the input function. Notice that we are using the format method to add the day reminder to the input argument. If you don't remember this method, review the topic on string data type. Finally, we add the number of squats entered to the total variable. In the third section, we add statements outside of the while loop. We calculate the daily average and print the required information. So, are you clear how to use while loop? Practice makes perfect, so practice writing some simple programs using the while loop. Next, you will learn about the for loop. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक लूप्स का फॉर लूप्स और वाइल लूप का। इसमें इनिट स्टार्ट होता है और फिर हम सीक्वेंसली एक के बाद एक जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती है तब तक ये लूप चलता रहता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो ये लूप बाहर आ जाता है। ये ऐसा फॉर लूप में होता है। फिर वाइल लूप में इनिशियलाइज करते हैं और फिर कंडीशन चेक होती रहती है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई, सेम चीज लूप जो है आउट ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हम जो है प्रोग्राम बनाते हैं और कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं ताकि हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। आपको ऐप के प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल जाएंगे लूप्स के बेसिस पर, और जब आप ऐप्स के अंदर पोस्ट रीड करेंगे तो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें एक इजी सा क्वेश्चन है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिया, जबकि मुझे तो यहाँ पे 5 तक ही प्रिंट करने थे। तो मैं आपको बताता हूँ।
जब आप फॉर लूप चलाते हैं तो x की वैल्यू हमें 0 से लेकर 5 प्रिंट करना था, तो x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0। फिर एक बड़ा 1 x में ऐड हुआ और x 0 + 1 यहाँ पे आ गया 1। फिर 1 x की वैल्यू 1 हो गई और फिर अभी तो हमें 6 तक जाना है, तो 1 और ऐड हो गया 2। ऐसे ही 1 और ऐड हुआ 3। ऐसे ही 1 है 4 और 5। यहाँ पे 6 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ जो डिजिट प्रिंट हो वो 6 होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है 5 और 0, यहाँ पे कितने हो गए 6 डिजिट्स हैं। इसीलिए हम यहाँ पे जितने हैं नंबर्स हमें चाहिए होते हैं उतने हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर मुझे 10 चाहिए, ठीक है, 10 डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 10। अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक डिजिट प्रिंट्स होंगे, लेकिन मैंने तो कितने करते 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर क्या हो, मुझे 0 नहीं चाहिए और मुझे 1 से 10 तक ही नंबर चाहिए, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, 1 कॉमा, और यहाँ पे हम जब यहाँ पे 1 से या 1 यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया हमारा बिगनर और ये हमारा आ गया एंड विथ, और यहाँ से जो है लूप चलेगा, 1 से लूप चलेगा और 10 पे खत्म होगा। फिर जब हम इसको रन करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। देखिए 1 से लेकर 10 9 है। 10 क्यों नहीं आया, क्योंकि हमें जो चाहिए नंबर चाहिए थे वो आप सिंपली 10 - 1 कर दीजिए, जितने आएंगे उतने डिजिट आपको प्रिंट होगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 2 से लेके अब कितने डिजिट प्रिंट होंगे 8, तो यहाँ पे 8 तक ही डिजिट प्रिंट होंगे, 2 से लेके 8 तक 8 डिजिट प्रिंट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजिट यहाँ पे प्रिंट हुआ हमारा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम सॉल्व करेंगे। हमें मान लीजिए 1 से लेके 100 तक नंबर्स प्रिंट करने और सारे इवन नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, मतलब क्या है, हमें वो प्रिंट करना है 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने हैं और ऑल नंबर शुड बी इवन नंबर्स। सो हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे। अब हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 100 तक, ऑल इवन नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, जैसे कि 9 इन रेंज जो फंक्शन है हमारा। उसके बाद हम हम बिगिनिंग एड्रेस क्या है हमारा 1, तो हम 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे इन लिखेंगे, फिर रेंज फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, क्योंकि पहला जो इवन नंबर है वो 2 है, कॉमा 100 तक हम नंबर्स को लिखेंगे यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे हम वेरिएबल लिख देंगे जो हमने यूज किया था। अब यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, इस 2 को क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ, पहले हम आउटपुट देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स आ गए जो 1 से लेकर 100 के बीच में होते हैं। अब यहाँ पे 100 क्यों नहीं आया, क्योंकि वो भी तो एक इवन नंबर है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 101 लिखना पड़ेगा। जब हम 101 लिखेंगे तो ये 100 को भी आइटरेट करेगा, वरना ये 100 तक ही चलेगा। देखिए 100 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है इजीली किसी भी फॉर लूप्स को इस्तेमाल करके हम इवन नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तो उसमें हमें कंडीशन लगाने होते थे, फिर हमें डिवाइड करके चेक करना होता था कि ये इवन से डिविजिबल है 2 से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 इसमें ऐड हो रहा है, जैसे कि 2 में ये 2 ऐड होता है तो क्या क्या आता है 4, फिर इस 4 में 2 ऐड हुआ तो क्या हुआ यहाँ पर 6, फिर ऐसे ही 2 2 ऐड होकर के यहाँ पे हमें प्रिंट हुआ। यहाँ पे हमने तो इस तरीके से हम अगला प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे हम जो है डेटा को लिस्ट से डेटा को एक एक करके प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। तो हमें उसके बाद हम फॉर लूप लगा के इस लिस्ट से डेटा को 1 बाय 1 फेच करेंगे। तो वो कैसे हम करेंगे, आइटम हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। इन यहाँ पे हमें उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसमें एरे ऑफ डेटा स्टोर्ड है, तो यहाँ पे हम लिस्ट 1 लिखेंगे।
और यहाँ पे कोलन लगाएंगे और यहाँ पे इंडेंटेशन लिखेंगे और सिंपल यहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल करके उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो हमने एक एक करके हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, 1 by 1 डेटा, लिस्ट का डेटा 1 by 1 एरे में आइटम में आ रहा है, स्टोर हो रहा है और फिर वो इसको आइटम उसको प्रिंट कर दे रहा है। जैसे कि आइटम है यहाँ पर और यहाँ पर लिस्ट है। अब लिस्ट में से इंडेक्स 0 का जो भी डेटा है वो आया और आइटम में जाके स्टोर हो गया, आइटम वेरिएबल में स्टोर हो गया और आइटम ने इसे प्रिंट कर दिया। अब यहाँ इसकी वैल्यू हो गई एप्पल, लेकिन अब फिर लिस्ट में अगला वैल्यू आ जाता है BMW, वो इसमें स्टोर आता है तो आइटम में अब की बार वैल्यू आ जाती है BMW, तो वो यहाँ पे प्रिंट आती है। तो जैसे हम इसको रन प्रोग्राम करेंगे तो हमें यहाँ पे सारे डेटा 1 by 1 फेच हो गए हैं। तो इस तरीके से कुछ आसान प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और लिस्ट को हम और डिटेल में पढ़ेंगे अपने टॉपिक में, लेकिन हमें यहाँ पे फॉर लूप को पढ़ना है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर का नाम और उसके पास कौन सी कार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमन और उसके पास क्या है, उसके पास है BMW। अब हमें यहाँ से डेटा 1 by 1 फेच करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स लेंगे क्योंकि एरे में हमें दो चीज़ों को प्रिंट कराना है, एक नेम और दूसरा कार का नाम, इन दोनों को प्रिंट करना है, इसलिए हम दो वेरिएबल्स लेंगे, जैसे कि क्या, कार और फिर इन लिस्ट। अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा क्या होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आपको देखा अमन हैज BMW एंड उस हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरीके, लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं यहाँ पे एक ही वेरिएबल लूँ और यहाँ से चीज़ों को हटा दूँ तो यह हमें यहाँ पे एरे शो करेगा। देखिए यहाँ पे सिंपल ये इसको एक इंडेक्स मान लेगा और उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें प्रिंट होती जाएंगी एरे के फॉर्म में। लेकिन वही हम इसको जब दो वेरिएबल करते हैं तो वो एरे के अंदर भी चला जाता है और फिर चीज़ों को प्रिंट करने लगता है। ठीक है, तो अगला हम प्रोग्राम करते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द नेम ऑफ दोज हु आर एलिजिबल फॉर द वोट। तो वो हम कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बना देता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिस्ट बना लिया है और यहाँ पे तो मैंने बहुत ही कम डेटा लिए हैं। मान लीजिए अगर आपके पास 1000 ऐसे डेटा होते हैं तो आप एक एक करके चेक करते हैं, फिर उस डेटा को प्रिंट करते हैं जिसकी जो अवेलेबल है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं वोट देने के लिए। तो बहुत ही आपको हो सकता है 2-3 घंटा लग जाए, लेकिन जब आप ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको शायद, तो चलिए हम वही करते हैं। नेम हमारे पास हम यहाँ से ले लेंगे, वही अपना पुराना वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ से एज हमने एक वेरिएबल ले लिया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम में हमारी नेम आ जाएगा और एज में हमारा एज आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे इन यानी कि लिस्ट, जो भी हमारा लिस्ट था उसका नाम लिखा हमने और यहाँ में अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, सिंपल सा एक कंडीशन यहाँ पे कि एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो उस डेटा को प्रिंट करो, वरना कुछ किसी को उनको मत प्रिंट करो। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट और उस यूजर का नाम और हम यहाँ पे लिखेंगे इज एलिजिबल टू वोट। हमने ऐसा किया। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है और देखते हैं कौन कौन हमारा एलिजिबल फॉर वोट है। तो देखिए अमन वोट एलिजिबल, कौन एलिजिबल नहीं है, करण और राहुल। ठीक है, तो ये एलिजिबल नहीं है, तो इनका नाम इनमें नहीं है, लिस्ट में नहीं है। देखिए रणवीर 18 साल का है तो इसलिए वो एलिजिबल है क्योंकि 18 का हो चुका है, यहाँ पे इक्वल टू हमने लगाया था। तो इस तरीके से हम जो है फॉर लूप के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें कर सकते हैं। आई होप आपको फॉर लूप
समझ आया होगा। ऐसे वाइल लूप्स, डू वाइल लूप आप पढ़ सकते हैं। आपको पोस्ट ऐप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डीप में समझाया जाएगा। और थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपको कोई सजेशन हो तो। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है